अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और ख़ुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है, क्या ईरान ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर लिया है। क्योंकि ईरान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है और ये अर्थक्वेक के कारण ईरान में उथल पुथल जो हो रही है आजकल, उसके कारण लोगों का समझना और लोगों का जानना यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड है और ये अर्थक्वेक ऐसा था जो 10 The center was close to Semnan, a city in northern Iran. It wasn't a very big earthquake. The magnitude was around 4.5 on the Richter scale, so relatively minor, but there were some strong tremors. In fact, it was felt as far as Tehran. So a minor earthquake, some tremors, no damage at all. जी, ये अर्थक्वेक 4.5 स्केल का था, जो कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन क्या अर्थक्वेक न्यूक्लियर टेस्ट का प्रमाण है? क्योंकि अर्थक्वेक आने का वजह क्या न्यूक्लियर टेस्ट करने से होता है? तो जी हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट करने से अर्थक्वेक आ सकता है। That may have led to the tremors. But does this claim hold water? Can nuclear tests cause earthquakes? Did Iran really test its nuclear capability? And where does their nuclear program stand at the moment? Let's look at these one by one. First, do nuclear tests cause tremors? The answer is yes, they do. Any underground nuclear detonation can cause seismic activity similar to an earthquake, but not quite the same. For example, the depth of the tremor. This earthquake was shallow, around 10 kilometers deep. Usually, nuclear sites are located further underground. Then there's the detonation. It often causes an explosion on the surface. There was none in Iran, not that we know of. And no explosion is a very rare thing in a nuclear test. Plus, look at the magnitude. It does not indicate a nuclear explosion. Also, Iran is very prone to earthquakes. ईरान का जो हमला मिसाइल अटैक था इजराइल पे, उसका इजराइल ने दोबारा जवाब देना था। एक योजना इजराइल बना रहा था दोबारा, मतलब ईरान पे हमला करने की। उस बीच में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिससे कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ये अर्थक्वेक ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया है, इसके कारण ये अर्थक्वेक Very same place. So a lot of people joined the dots and said this must be a nuclear test. Of course, it's hard to prove. There isn't enough evidence. But does Iran have the capability to launch a test like this, and that too so quickly? How advanced is their nuclear program? They started working. क्योंकि लोगों की जो एक्टिविटी है, कुछ पार्ट्स लेकर उधर से जा रहा है, या कुछ लोगों का इंटरनेट पे जो कयास लगाया जा रहा है वो यही कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। Happened. America's friend, the Shah of Iran, was toppled and Ayatollah Khamenei took over. Initially, he was opposed to nuclear power, so their program was paused, but it resumed in the 1980s. And this time, Iran got help from countries like Russia. Iran really tests its nuclear capability, and where does their nuclear जी दोस्तों, क्या ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट इतना जल्दी कर सकता है? क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में जो यूरेनियम का एक भंडार होना चाहिए, और वो एक यूरेनियम का भंडार एक बार मतलब सर्च में लोगों के इसमें नज़र, लेकिन कोई ऐसा कारण नहीं बना है जिससे सरफेस पे, ज़मीन की सतह पे कोई ऐसा विस्फोट हो, और ऐसा कोई विस्फोट दिखा नहीं है। लेकिन ये अंडरग्राउंड साइट है। In fact, it was felt as far as Tehran. So a minor earthquake, some tremors, no damage at all. At any other point in time, no one would care about something like this. But this one is different. And that's because of the timing. It's suspicious.
Iran struck. और सेम जगह पे 5 साल पहले भी ऐसा अर्थक्वेक आया था और ये इससे कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये अर्थक्वेक वो भी परमाणु टेस्ट का तो नहीं था। First underground nuclear test that may have led to the tremors. But does this claim hold water? Can nuclear tests cause earthquakes? Did Iran really test its nuclear capability? And where does their nuclear program stand at the moment? Let's look at these one by one. First, do nuclear tests cause tremors? The answer is yes, they do. Any underground nuclear detonation can cause seismic activity similar to an earthquake, but not quite the same. For example, the depth of the tremor. This earthquake was shallow, around 10 kilometers deep. Usually, nuclear sites are located further underground. Then there's the detonation. It often causes an explosion on the surface. There was none in Iran, not that we know of. And no explosion is. आयतुल्ला खमेनी का एक रिवॉल्यूशन आया था जिसमें उन्होंने मतलब सत्ता में आ गए थे और वो रिवॉल्यूशन आने के बाद ईरान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो बंद कर दिया था, क्योंकि स्टार्ट तो इन्होंने 1950 से ही किया था लेकिन दोबारा से रिज्यूम किया, दोबारा उस पर काम किया 1980 से। तो दोस्तों बहुत बड़ा गैप हो जाता है और उसके बाद 1980 से अभी देख लो इतना 2024 हो गया है, अभी इसके पास कैपेसिटी नहीं होगी कि बना सके। और ख़ास करके इसमें रसिया का बहुत सपोर्ट है, तो ज़्यादा उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि ईरान तो काम तो कर रहा था, ये मतलब न्यूक्लियर पावर पे काम तो बहुत दिन से कर रहा है, क्योंकि एक बार 2003 में लोगों की नज़र में आया था कि यूरेनियम का भंडार यहाँ पाया गया था। तो यूरेनियम का भंडार और वहाँ एक साइट मिली थी, ऑफिस मिला था जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर पावर पे काम कर रहा था। तो उससे ये पता लगा कि न्यूक्लियर पावर पे ईरान तो बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट ही था? इसका दोस्तों कोई मतलब एविडेंस तो नहीं है। Shah of Iran was toppled and Ayatollah Khamenei took over. Initially, he was opposed to nuclear power, so their program was paused, but it resumed in the 1980s. And this time, Iran got help from countries like Russia. In 2002, it was found that Tehran had secret nuclear facilities. आधुनिक इतिहास का एक अहम लम्हा। शाह के शासन में ईरान पर यूरोपीय सभ्यता का खासा असर पड़ चुका था, लेकिन तेल के अकूत भंडार की वजह से यहां तब भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता का बोलबाला हो गया, जिसने हिंसक प्रदर्शनों को जन्म दिया। अयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। वो शाह की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते थे। जल्द ही शाह को ईरान से भागना पड़ा। वो तब कैंसर से जूझ रहे थे। दोस्तों, पश्चिमी देशों से प्रेरित होकर शाह फैसल ने वाइट रेवोल्यूशन कायम किया था 1960 से 70 ईस्वी में। और उन्होंने मतलब ये जो नकाब, बुर्का, ये सब पर्दा और कल्चर को हटाना शुरू किया और उसने शॉर्ट्स कपड़े पहनना, लड़कियों को हर अधिकार देने की शुरुआत कर दी था। लड़कियों को हर अधिकार देने की शुरुआत कर दी थी उनने। तो वो ये चीज़ प्रचलन शुरू कर दिया वहाँ। तो उसके अगेंस्ट में जो आयतुल्लाह खुमैनी एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने और उनको फ्रांस का उसका दुश्मन और पश्चिमी देशों से उसकी दोस्ती थी। तो वो पश्चिमी कल्चर को एडॉप्ट करना चाह रहा था ईरान में पूरी तरह से, और जिसका खिलाफत आयतुल्लाह खुमैनी और एक दो लीडर थे जो ऊपर के लीडर थे, और पब्लिक को उन्होंने साथ लिया और उसको लास्ट में ईरान छोड़ के भागना पड़ा। और उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने अपना ईरान पे हुकूमत स्टार्ट कर दी, कब्ज़ा किया, हुकूमत स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये सब चलता हुआ। तो और न्यूक्लियर में यही है कि 1950 से उसके बाद उन्होंने बंद करा दिया। फिर 1980 में ये 10 साल बाद स्टार्ट हुआ, उनकी जब मृत्यु हो चुकी होगी तब।
जाके स्टार्ट हुआ, अब जाके मतलब बहुत टाइम हो जाता है उसके अरसे के बाद। तो अब तक कैसे नहीं न्यूक्लियर पावर बन सकता है, वो तो कुछ ऐसी हालात हैं जो मतलब उन्होंने वो जो रेवोल्यूशन किया ना, वो दुश्मनी, वो उस टाइम की दुश्मनी अभी तक चलती आ रही है, समझिए, पश्चिमी देशों से और इसराइल से। और बहुत सारी कहानी है उसमें। इसराइल ने जब फ़िलिस्तीन में जाके वहाँ फ़िलिस्तीन के लोगों को जब घर कब्जा करके और घर में ताला लगा के फ़िलिस्तीन के लोग गए थे कि हम आएंगे दोबारा, और वहाँ जो गए तो वहाँ से आने नहीं दिया, घर वर सब तोड़ फाड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और वहाँ कैंप में लोग रहने लगे। तो एक नेता और हुआ करते थे, वो जाके मतलब बैरूत में जहाँ हमला अभी हो रहा है, बैरूत में उन्होंने मतलब लोगों को, शिया समाज के लोगों को ट्रेंड किया उन्होंने, मतलब गरीबी से निकालने, पढ़ाई लिखाई, और उसमें बहुत सारे मतलब, और समझिए कि ट्रेनिंग दी हथियार चलाने की, ये वो ये सब मेरे को लगता है कि हमास उमास वहीं से आया होगा। और ऐसी तो बहुत लंबी स्टोरी है इसकी, ईरान की। और ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। वो कर भी ले अगर कोई देश, तो उसका क्या कर सकते हो, बाद में न्यूक्लियर पावर ही तो हो गया वो, उसका क्या कर सकते हो दोस्तों। ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।